Good evening, dear friends, and we are happy to welcome you today. It's a wonderful day. And guess why? We have lovely guests joining us all the way from Pathankot, Punjab. We have people from different walks of life sharing their journey on the International Fab Talks. And we'd love to know more about their life. We'd love to know more about their lives and how they have overcome all their challenges. What are the challenges they do face and how they inspire others? What are the ways one could learn from them? Is all about International Fab Talks. Many unsung heroes, professionals, and people from different walks of life have shared the journey with us on the International Fab Talks. We've completed more than 670 plus interviews shared on this platform by various celebrities and guests joining us to share the journey with us on the International Fab Talks. And today it's a wonderful day because we have the special presence of a wonderful guest, a great celebrity who's here with us. He is none other than Mr. Mukesh Kumar and his friend Sugriv. They are joining us all the way from Pathankot, Punjab. We'll get to know more about his journey. He is connected to the field of music. In fact, he is visually impaired. That means partially visually impaired, to put it right. But he's a very good student. He's been performing very well in his studies and he's been able to clear all the examinations very well and secure a wonderful job connected with the great institution called as Kendriya Vidyalaya. And today from Kendriya Vidyalaya, we have a wonderful celebrity guest who's joining us. On this session, we'll get to know more about his journey and how he's taken it forward. What inspired him to take up music? Is he gifted with a good voice? Let's get to know all of it. And what is the support he's getting from the community? नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे लिए वक्त निकाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस मंच पर आए हैं, धन्यवाद भैया। नमस्कार और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इंटरव्यू का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम आपका धन्यवाद करना है क्योंकि आप हमारे लिए वक्त निकाले हैं और आपकी जिंदगी के बारे में शेयर करेंगे यहाँ पर और आपके गाने भी सुनाएंगे हमें। और आपके साथी भी है आपके साथ, सुग्रीव जी। सुग्रीव जी, आपका भी धन्यवाद यहाँ पर आपका वक्त शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वी थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे सुग्रीव भैया? मैम, मैं तो इनके साथ जी जी हूँ और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने बुलाया हमें। और मतलब इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। Thank you. So, dear friends, we are going to have the light of music or the joy of music being shared. They spread light with their voice. They spread happiness and joy with their voice and the musical instruments. We'll get to know about this beautiful pair who's in front of us as to how we can understand life from their perspective and what are their achievements. Let's get to know. Our celebrity guest, Mr. Mukesh Kumar, has won several gold, silver, and bronze medals for various activities that he's taken part, or maybe various type of programs, musical programs and song competitions he's been joining and receiving several awards and rewards. We'll get to know more about it on the International Fab Talks and celebrate his journey today along with his friend Sugri. मुकेश भैया, हम ये जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। आपका बचपन कैसा था? आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि हमने ये सुना है कि आप बहुत अच्छी तरीके से गाते थे। तो जब आप छोटे थे तो खूब गाते थे आप। जो टेरेस में जो लोग सोते हैं थोड़े बहुत, तो आपका गाना सुनकर उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इसके बारे में और आपके बाकी जो बचपन के यादें हैं थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। ओवर टू यू। देखिए, जब तक जहाँ तक मुझे याद है, तो जब मैं 5-6 साल का था, तो हमारे यहाँ पर छत पे लोग उस टाइम सोया करते थे और खासकर गर्मियों के मौसम में। तो उस टाइम क्या होता था कि काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग जो अ, आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत बातें करते थे, तो वो सब मुझे रात को छत पे बुलाते थे और मुझसे गाना सुनते थे। तो उस टाइम पे जो प्रचलित गाने थे, एक्चुअली में उस टाइम पंजाबी गाने मैं ज़्यादा गाता था। तो अब तो ख़ैर मैं नहीं गाता पंजाबी गाने, अब तो मैंने लगभग गाना छोड़ दिया है। लेकिन उस टाइम क्योंकि मैं छोटा था और मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी है, तो इस वजह से मैं उस टाइम पंजाबी गाने ही गाता था और जो प्रचलित गाने होते थे वो मुझे
उस टाइम याद होते थे और वो सुनकर लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था। तो वो मुझे मोटिवेट करते थे कि आपको सिंगिंग में आगे जाना चाहिए। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अभी आपको जब छोटे आप थे तो आपको क्या बुलाते थे? अभी तो आपका नाम मिस्टर मुकेश कुमार है, तो बचपन में आपको प्यार से क्या बुलाते थे? अ, घर पे मुझे बचपन से अभी भी भारती बुलाते हैं, मतलब बचपन से ही बुलाते हैं, अभी भी वही बुलाते हैं। वो मुझे प्यार से भारती बुलाते हैं। जी जी जी। अभी हम ये जानना चाहेंगे मुकेश भैया, आपको गाना कब से वो एक पसंद आया आपको सिंगिंग करने में? आपको कब मालूम हुआ कि मुझ में एक हुनर है गाने का? क्योंकि आपको गाना छोटे से ही आपको आप गा रहे थे, तो ये हुनर आप में कब आपने समझ में आया आपको कि भाई हाँ मैं भी गा सकता हूँ और मेरा गाना सबको पसंद आ रही है? तो व्हेन वाज इट? देखिए, इसके लिए ऐसा है कि बचपन से मैं गाना तो गाता ही था, लेकिन एक्चुअल में मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं कैसा गाना गाता हूँ, कैसा नहीं गाता हूँ। ये लोगों की जो फीडबैक थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता था कि मुझे गाना गाना चाहिए। फिर धीरे-धीरे जब मैं थोड़ा-सा बड़ा हुआ, तो मैं अमृतसर एक ब्लाइंड स्कूल है, इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, अ, अमृतसर लोअर गेट, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने बेसिक म्यूज़िक की ट्रेनिंग स्टार्ट करी। वहाँ विशारद कराते थे, जो कि प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से होती है। तो उसका जो सिलेबस होता था, उसको वो सिखाना शुरू करते थे। तो वहाँ पे जो टीचर थे, जब सिखाते थे, वो मुझे काफ़ी एप्रिशिएट करते थे कि आप अच्छा गाना गाते हैं और अच्छा सीख सीख सकते हैं। तो फिर मैंने ये इसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, वो स्टार्ट करी। उसके बाद फिर ये सिलसिला धीरे-धीरे चलता रहा। जी जी जी, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली नाइस भैया। अभी हम ये जानना चाहेंगे मिस्टर मुकेश, आप किस तरह के गाना गाते हैं और कहाँ से सीखे हैं आप? जब आप छोटे थे तो कहाँ से सुने आप गाना और कहाँ से सीखे? क्या टीवी से सीखा है या कहीं मंदिर में या अपने घर में कोई गाते थे या कहाँ से आया ये हुनर आप में? जब मैं बिल्कुल छोटा था, तो नॉर्मली हम जैसे गाने सुनते हैं, ऐसे मैं भी सुनता था, जैसे सभी लोग सुनते हैं। और मैंने बस मुझ में और बाकियों में फ़र्क इतना रहा कि वो सिर्फ़ सुनते हैं और मैं उसको अ, याद करके गाने की कोशिश भी करता था। तो ये हुनर एक्चुअल में हमारी किसी भी फैमिली मेंबर में नहीं है, कोई भी हमारा म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं है। तो ये मान लीजिए कि भगवान की कृपा है कि ये इस तरह का हुनर हमें उन्होंने बख्शा और उन्होंने हमें ये शामिल किया कि आप इसको सीखें और आगे जाकर जानें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ये जानना चाहेंगे, क्या आपको बचपन से ही थोड़ा सा दिखाई नहीं देता था या अब बड़े होने के बाद में ये प्रॉब्लम आपको आई है या जब आप छोटे ही थे सब तब से ये आपको है दैट यू आर पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड? इसके बारे में एक्चुअली ऐसा है कि मैंने जो सुना है, क्योंकि जब से मैं होश में आया हूँ, तब से तो मैं एज़ इट इज़ हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही हूँ। लेकिन मम्मी बताते हैं कि जब मैं 1 साल का था, तो मुझे वॉमिटिंग और फ़ीवर वग़ैरह हुआ था। तो वो किसी डॉक्टर के पास ले गए थे, उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया और वो उसके रिएक्शन से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। ओके ओके, अभी हमको समझ में आ रही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेयर किया है। ये बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया है। अभी दूसरे माताएं जो है तो अपने बच्चों का ख्याल करिए, सही डॉक्टर के पास ले जाइए, सही इलाज कराइए। यस डियर। अभी सर हम ये जानना चाहेंगे, अभी जब आपको ये मेडल्स या तोहफा मिलते हैं, जब आप गाते हैं, आपको प्रशंसा होती है और आपको अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलती है, तो आपको कैसा लगता है? आपका गाना पसंद भी आया और आपको उसमें प्राइज भी मिला आपको, क्योंकि आपको गोल्ड मेडलिस्ट भी है, सिल्वर मेडलिस्ट भी है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी है, तो आपको कैसा लगा? कैसा लगता है जब आपको मिलती है ये पूरा, आई मीन ऑल ऑफ दिस गिफ्ट्स? देखिए, जब हमें एप्रिसिएशन मिलता है किसी भी रूप में, चाहे वो कोई प्राइज़ हो या लोगों की के द्वारा जो फीडबैक मिलती है, उसके थ्रू हो, तो हमें अच्छा ही लगता है। लेकिन एज़ अ पर्सनल व्यू मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं कोई बहुत अच्छा गाना नहीं गाता हूँ।
अभी सिर्फ सीखना जारी है, और वो तो ताउम्र चलता रहता है। संगीत का यही नियम है कि ताउम्र हम सीखते रहते हैं, और अ, अभी भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। जी जी, दैट्स रियली नाइस। बहुत बड़ी बात आपने कहा, सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। दैट्स रियली नाइस। हम हमेशा लर्निंग करना है, तो सीखना हमेशा अंत तक सीखते रहना है। हम शायद आपके दो गुरुजी भी है, हमने सुना है ना? जी, मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर दिनकर शर्मा, पटियाला एंड चांद चौरासी घराने से हैं, और उन्होंने उस्ताद भूरे खान साहब से दीक्षा प्राप्त की संगीत। जी भैया, शुक्रिया भैया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अभी हम ये जानना चाहेंगे, ह- जिंदगी बहुत मुश्किल है हम सबके लिए, सभी के लिए कुछ ना एक अ, दुविधा आती रहती है या कठिन वक्त आता है। तो आपकी जिंदगी में सबसे कठिन वाला जो इंसिडेंट है या मुश्किल आपने फेस किया है वो कौन सा था? क्या नौकरी पाने में आपको मुश्किल था या कुछ और था जो बहुत बहुत गहराई से आपको चोट पहुंचाई, लेकिन उस चोट से आप पार कर ऊपर आ चुके हैं? एक्चुअल में ऐसा मैंने मुश्किलें तो ज़िंदगी में देखिए हमारे साथ-साथ चलती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किलों के बिना अ, ज़िंदगी कुछ नहीं होती, और सबसे ज़्यादा हमें सीखने को जो मिलता है, वो मुश्किलों से मिलता है। तो मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं कि मुझे कोई इस तरह की एक्चुअल मुश्किल आई, क्योंकि जो नॉर्मल मुश्किलें आती हैं, वो तो सबके साथ आती हैं, और वही मेरे साथ भी थी। कभी स्टडी के लिए कोई मटेरियल, क्योंकि एज़ अ विजुअल इम्पेयर्ड हमें उसको रिकॉर्ड करके या फिर किसी और तरीके से पढ़ना होता है, कुछ सिलेबस वगैरह मिलने में, इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर आती रहती थी। और इसके अलावा मुझे ऐसा कोई ज़्यादा नहीं लगता कि बहुत कोई ऐसी मुश्किल आई। जी भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद, आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ये जानना चाहेंगे आपके काम के बारे में। अभी आप केंद्र विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो आपको आई थिंक 2019 में आपको ये जॉब मिला है। अब वो भी आप एग्जाम्स लिखे हैं, यू आर एलिजिबल, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखे हैं आप और उसमें क्वालिफाई हो चुके हैं, तब जाकर आपको ये नौकरी मिला है। तो ये सब कैसे हासिल हुआ, कितना मेहनत करनी पड़ी आपको, और नौकरी मिलने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैंने जो ग्रेजुएशन की थी वो पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज वहाँ से की। और उसके बाद मेरा रुझान क्योंकि म्यूज़िक में था, तो मुझे लगा कि दिल्ली में उसका ज़्यादा स्कोप होगा, तो मैं मास्टर्स करने के लिए दिल्ली आ गया था। और यहाँ पर मैंने मास्टर्स करते-करते जेआरएफ नेट जेआरएफ की तैयारी की, और अ, वो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा, और मैंने उसको सक्सेसफुली क्वालीफाई कर लिया। उसके बाद ये 2018 में केवीएस की तरफ से वैकेंसीज़ अनाउंस की गई थी। उसके लिए मैंने अप्लाई करा था, और उसका मैंने एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू दिया, और भगवान की कृपा से उसमें भी मैं पास हुआ, और फिर मुझे 19 में जॉब मिली। तो जॉब के बाद ख़ैर अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अभी अ, जॉब भी करते हैं, और साथ-साथ अपना थोड़ा बहुत रियाज़ जितना टाइम मिलता है वो भी करते एक्सेलेंट एक्सेलेंट भैया, बहुत बहुत बढ़िया। अभी हम ये जानना चाहेंगे, क्या सपोर्ट आपको मिल रही है आपका काम के जगह जहां पर आप काम कर रहे हैं? तो आपके स्टाफ मेंबर्स किस तरह के सपोर्ट करते हैं, या बच्चे जो है किस तरह के आपका सम्मान और आदर करते हैं? क्योंकि उन लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी एक चीज रहती है उनका। तो हैव दे एक्सेप्टेड यू कंप्लीटली, एंड हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग टू यू? किस तरह से आपके पास आके आपसे बातें करते हैं, या आपका मदद करते हैं, या आप उनका मदद करते हैं? ओवर टू। देखिए स्टाफ के साथ तो टाइम टू टाइम होता है, जैसे अगर उनको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं भी करता हूँ। लेकिन ओवरऑल मेरा स्टाफ जो है बहुत कोऑपरेटिव है, और अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह की किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डेफ़िनेटली मेरी हेल्प करते हैं। और मेरे जो प्रिंसिपल और एचएम हैं, जिनके अंडर मैं काम करता हूँ, मेरे ऑफ़िसर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट करते हैं। और बच्चे जो हैं वो जहाँ
यहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ती है मुझे, कहीं भी आना-जाना होता है, उसमें कभी थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम हुई, तो बच्चे मेरा बहुत साथ देते हैं और आदर भी करते हैं और हम उनको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम उनके लिए कर सकें, जो हमारी ड्यूटी है, यानी कि उनको संगीत सिखाना, वो हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से उसको निभाएँ। जी भाई साहब। अभी हम ये जानना चाहेंगे जब आप संगीत पढ़ाते हैं, गाना सिखाते हैं बच्चों को, तो ज़्यादा लड़के लोग आके पसंद से सुनेंगे या सीखने का इच्छा रखते हैं या लड़कियाँ आके सीखते हैं अच्छा? अ, अब तो ख़ैर लड़कियाँ ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन लड़के भी हैं कुछ जो सीखते हैं और दोनों के इंटरेस्ट अलग-अलग होते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर रिदमिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे तबला हो गया या ढोलक हो गया या फिर आपका कोंगो वगैरह हो गया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लड़के आगे रहते हैं, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और गाने में, हारमोनियम सीखने में और इंस्ट्रूमेंट जो इस तरह के पियानो टाइप, वो इंस्ट्रूमेंट सीखने में लड़कियों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा जी। मैंने देखा मेरे स्कूल में। बाकी जी, जी, जी। अ, हर जगह का अलग-अलग सिस्टम होता है और हर जगह के जो बच्चे हैं, इनका इंटरेस्ट भी अलग-अलग हो सकता है। तो जो मेरे स्कूल का जो सिस्टम है, वो मैं आपको बताता हूँ। जी भाई साहब। अभी हमको एक अच्छा-सा गाना सुना दीजिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए अच्छा-सा गाना सुना दीजिए। सुग्रीव भाई भी बैठे हैं, तो आप दोनों मिलकर हमारे लिए कुछ अच्छा सुना दीजिए। जी। निकलता रहा है आपका आहिस्ता धरती जाए जमा होंगे जब तो हमसे कर दिया बदला जमा होंगे जब वो तेरे कर लिया वरना जमा होने लगी जब वो तुमने कर दिया मेरा यकीन जमा अच्छा मेरा यकीन निकलता आ रहा है आपका
जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए बहुत अच्छी सी गाए हैं आप, और तबला भी अच्छा बजाया भाई साहब आपने, और आपने हारमोनियम और गाना भी आप हमारे लिए बहुत अच्छी बहुत तरीके बहुत से शुक्रिया। आपने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स रियली वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी हम ये जानना चाहेंगे मुकेश सर आपसे, आपका संदेशा क्या है? अभी बहुत सारे लोग जो देखेंगे ये सेशन, देखेंगे ये इंटरव्यू देखेंगे, तो आप उनके लिए किस तरह का एक संदेशा देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा सबको कि कोई भी इंसान हो, उसको सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। किसी भी अ, चीज़ में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, काम कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता। तो मैं उसके लिए किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। कुछ भी आप करें, आप लगन से करें, मेहनत से करें, ज़रूर उसमें आपको भगवान कामयाबी देगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बस, अभी हम सुग्रीव भैया से सुनना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? आपसे क्या संदेशा हम आज मिल पाएगा? आपसे कौन सा संदेशा आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? अ, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि क्योंकि सब कुछ अ, हर किसी की अलग-अलग मान्यताएँ हैं। जैसे मैं अपने कर्मों को प्रधान मानता हूँ, तो हमें अपने कर्म करने चाहिए। अगर हम म्यूज़िक कर रहे हैं, जैसे रफ़ी साहब थे, उनको पेमेंट का कुछ नहीं था कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, मुझे ये गाना करना है। उनको म्यूज़िक करने से मतलब था। तो सेम वही चीज़ है कि अगर हम म्यूज़िक कर रहे हैं, तो मतलब कोई एक ही काम करो, लेकिन अच्छे से करो, मेहनत करो। बाकी भाग्य से पहले और भाग्य से ज़्यादा तो कुछ मिलता नहीं है किसी को।
वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी हम ये जानना चाहेंगे मुकेश सर, आपको खुद में क्या अच्छा लगता है? आप में ऐसी कौन सी बात आपको खुद को पसंद है? हम सब में एक ना एक चीज हमको खुद पसंद रहता है कि हाँ ये मेरा हुनर है या ये मेरी अच्छाई है। तो आप में क्या अच्छा लगता है खुद को? मुझे ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ और मुझे सुनना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अभी भी। तो लगता है इसके अलावा तो मैं ऐसा कुछ नहीं ढूँढ पाता हूँ अपने में। मुझे लगता है कि अभी तक मैं अच्छा श्रोता बन पाया हूँ और वही सबसे अच्छी चीज़ है मेरे लिए। सुग्रीव भाई, आप क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में? आपको क्या पसंद है खुद में? अ, मैम मैं भी चाहता हूँ कि जैसे मैं जब दूसरों को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं ऐसा कब गाऊँगा? मेरे पास ऐसा कब होगा? मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ लेकिन जो मेरी इच्छा है वो है कि मैं वोकल करूँ, मैं गाऊँ। जब कोई अच्छा गाता है और या फिर जब कोई किसी की तारीफ़ करता है कि यार वो इतना अच्छा गाता है यार, सच में अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि यार काश मैं भी अच्छा गाता, काश मैं बहुत अच्छा मतलब मैं भी अच्छा गाता होता, मैं ग़ज़लें गाता और इनकी तरह ही मैं गाता। लेकिन यही मेरी इच्छा होती है कि मैं अच्छा गाऊँ और अच्छे लोगों को सुनूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी हम ये जानना चाहेंगे मुकेश भैया, जब आप बाहर निकलते हैं, कहीं आप कहीं सफर करने जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं या अलग लोगों से मिलते हैं आप, तो कभी कभी नाइंसाफी होती है। बहुत लोगों के साथ होती है, हमारे साथ भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नाइंसाफी हो गया, कुछ ऐसे वैसे कुछ बोल दिए, तो आप उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? हम लोग तो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, रो लेते हैं, लड़ लेते हैं, थोड़े लोग मारपीट कर लेते हैं। जो बात नहीं सुनना है वो हमको सुनाई दिया, तो देन दैट इज नॉट गुड। तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं अपने तरफ से? मैम, नाइंसाफ़ी से आपका क्या मतलब है वो मैं एक बार अगर आप मुझे बता देंगे तो फिर मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। जी, कभी क्या कभी अभी। हाँ हाँ, बोलिए। आप क्या पूछना चाहते हैं नाइंसाफ़ी के बारे में, जी मतलब जी किस जी, तरह मैं की बताऊंगी। नाइंसाफ़ी के बारे में पूछना चाहते हैं जी वो? जी जी, मैं बताऊंगी, स्पष्ट करूंगी मैं अभी। जब अभी बैठना चाहेंगे अभी हम, तो हमारे सीट पे कोई बैठ गए, तो उठना ही नहीं चाह रहे वहां पर, या कहीं हम लोग कोई फंक्शन में गए, कुछ बोल दिए, या हमको वहां पर आने नहीं दिए। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, नहीं ये आपके लिए नहीं है, बस इन लोग और ये अंदर आना है, इन लोगों को ही यहाँ पर बैठना है। हुआ है हमारे साथ, और बहुत लोगों के साथ भी हुआ है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ नाइंसाफी हुआ है? जब हम सब एक है, भारतीय सब लोग एक है, सब लोग मिलजुल कर रहना है, तो क्या कभी आपको ऐसा भेदभाव, कभी ऐसा लगा आपको, आपको अलग कर दिए या आपको कुछ अलग सा ट्रीट कर रहे हैं, जो एक नाइंसाफी की तरफ हमको समझ में आ रहा कि भाई कुछ सही नहीं है यहाँ पर, सबको एक तरह से देख रहे हैं और मुझे अलग सा, मेरा साथ हुआ है। तो मैं वही शेयर कर रही हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो अगर हुआ है तो आप उसको हैंडल कैसे करें? मैं तो लड़ लिया, मैं तो वहां पर यू नो जोर से मैंने बात किया और फिर लड़ लिए, फिर दो चार लोग आए, फिर उसको समाधान करके पीसफुली इट वाज सॉल्व। तो आप कैसे रिजॉल्व करते हैं इश्यूज, अगर आप उस इश्यू में रहे तो? देखिए, मेरे साथ कभी भी अगर ऐसा होता है तो मैं एक्चुअली थोड़ा-सा इस मामले में थोड़ा अलग हूँ। मुझे ऐसे लोगों से लड़ना, बहुत ज़ोर से बोलना, ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम्म। पता नहीं क्यों मैं शुरू से थोड़ा ऐसा हूँ। तो अगर मेरे साथ ऐसी कोई नाइंसाफ़ी होती है तो मैं प्यार से बात करने की कोशिश करता हूँ। और अगर फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं होता है ऐसी जगहों पे कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते या ऐसा है, वैसा है, तो हम फिर ऐसे लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि उनको इग्नोर करके और अपना साइड होके अपना मतलब जो भी हमें अपना काम करना है वो उस पे हम फ़ोकस करें। जी जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। इग्नोर करना है, आज मैंने सीखा है आपसे इग्नोर करना है। लेकिन मुझे क्या है ना भैया, गुस्सा जल्दी आता,
आता भी है और फिर कम भी हो जाता है, लेकिन एकदम जब कभी नाइंसाफी दिखाई देता मुझे या मेरे साथ कुछ नाइंसाफी होती है तो मैं इमीडिएटली भड़क जाती हूँ और गुस्सा आ जाता है मुझे। तो आज लेकिन हमने सीखा है आपसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना है और अपने रास्ता चलना है, अपना काम करना है। यहाँ नहीं तो कहीं और हमको अच्छी प्रेरणा देखिए मिलेगी या यहाँ पे अच्छी बातें एक बात सुनाई। बताना चाहता हूँ, एक्चुअली हाँ एज जी। अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम रेगुलर आती रहती हैं। जी जी जी। अक्सर मतलब हम ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मेंटेलिटी होती है कि भाई ये डिसेबल हैं, मतलब इनको ये कुछ कर नहीं सकते, या ये ऐसे हैं या वैसे हैं, बेचारा देता तो मतलब हाँ बेचारगी टाइप का उनका। एक्चुअल में वो खुद भी थोड़े से मेंटली ऐसे बेचारे होते हैं, मैं तो यही मानता हूँ। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करता हूँ। तो वो आदत शुरू से ऐसी रही, तो इसलिए वो मुझे मेरे अंदर वो आदत डेवलप हुई कि ऐसे लोगों से लड़ने से अच्छा हम इनको इग्नोर करें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया है भैया। अभी हम सुग्रीव जी से पूछना चाहेंगे, भैया आप कैसे डील करते हैं अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हुआ है या हो रही है, तो क्या आप अपने लिए खड़े होकर बात करेंगे या कुछ यू नो अपना अपने मन की बात उनके तरफ शेयर करेंगे, यू विल यू शेयर योर थॉट्स, या आप खामोश होकर इग्नोर करके हट जाएंगे वहां से, क्या करेंगे आप? मैम मुझे लड़ना नहीं पसंद है, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत दूर ही रहूँ इन सब चीज़ों से। जैसे हम लोग हॉस्टल लाइफ हमने गुजारा है ना? मतलब हम लोग हॉस्टल में रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा सब रहा है। तो अक्सर ये रहा है कि जब-जब रैली हुई है या कुछ भी ऐसा रहा है कि मतलब हॉस्टल में आपस में लड़ाई हो गई, तो अक्सर ये हुआ है, मतलब अनफॉर्चुनेट कि मतलब मैं बाहर ही रहा हूँ। अच्छा, और क्या होता है कि छोटी-छोटी चीज़ों को मैं इग्नोर कर देता हूँ कि मतलब बाहर किसी ने बोल दिया कि अरे भाई उधर उधर जाओ ना, उधर जाओ, या अरे यार, अरे कहाँ जाना है? अच्छा, अंधा है ये तो। तो ये सब तो चलो हो जाता है बाहर में, अकेले में। लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया कि मतलब ज़बरदस्ती वाली बात, एक होता है कि कोई गलत है, उसके बावजूद भी मुझसे बहस करे, तो उस टाइम पे मैं आगे-पीछे सब कुछ भूल जाता हूँ कि कुछ छोटा है या बड़ा। मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। मैं उस टाइम पे कुछ भी बोल सकता हूँ, कि किसी भी हद तक जा, ये होता है मेरे साथ। लेकिन जल्दी मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ, ये होता है। जी जी जी, मुझे अच्छा लगा है आपने जब शेयर किया है। गुस्सा आ जाता है, मैं कुछ बोल देता हूँ, मैं भी ऐसी हूँ। तो थोड़ा सा हम मुकेश भैया से सीखना है, थोड़ा सा इग्नोर करके अपने दूसरे रास्ता चले जाना है. So I think friends, we are having a wonderful time with our celebrity and guest. We have two guests today, that is Mr. Mukesh ji and his friend Sugriv ji. They are sharing their journey with us. And if anybody troubles you or there is any injustice going on, it's good to ignore in most cases. That's the good tip that we have, and keep our anger in control. भैया अभी हम पूछना चाहेंगे सुग्रीव भैया, एक मुहावरा जो आपको प्रोत्साह करती है, अगर वो पढ़ने से या उसको समझ में अच्छी आ गई तो उसको एक जिंदगी का आधार बना देते हैं हम। तो ऐसा कोई ऐसा मुहावरा है या वन लाइनर है जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपका जिंदगी के ऊपर आधारित है या उसको आप फॉलो करते हैं? हम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे हाँ, ठीक, हाँ, आपको। हाँ जी। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा। या आई पुट द क्वेश्चन अगेन। जैसे मुहावरे रहते हैं तो कोटेशंस रहते हैं या कबीर दोहे ऐसा कुछ रहते हैं ना सर, तो आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ, ऐसा एक दो शब्द या दो लाइन ऐसा जो आप गाते हैं, तो आज अच्छे अच्छे लाइंस गाते हैं, क्या आप लिखते भी हैं? नहीं मैम, मैं बस थोड़ा-सा गाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं गाऊँ। मैं अच्छा। बाथरूम में भी नहाते वक़्त गाता ही हूँ, और जी जी बाइक पे अगर जाता हूँ तब भी गाता ही हूँ। जी लोग जी कहते हैं कि भैया आपकी क्लास चलती है क्या? मैं कहता हूँ कि हाँ, सीखता हूँ थोड़ा बहुत। जी। अभी हम ये बताएंगे आपको, लाइक हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस। तो ऐसा ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, ऐसे थोड़े कोटेशंस रहते हैं, तो ऐसे मुहावरे बोलते हैं उनको। तो आपके पास ऐसा कोई अच्छा वाला मुहावरा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक अच्छी बात किसी और ने कहा लेकिन आप फॉलो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ऐसी वाली बात। अ, सुग्रीव जी अगर आप रेडी है तो आप शेयर कीजिए, मुकेश भैया आप रेडी हैं तो आप शेयर कीजिए। अभी कुछ ऐसा मुझे हाँ, हाँ। जी।
कुछ भी याद नहीं आ रहा है मैम अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है जी। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, अब इतना सब कुछ आपने हासिल किया ना भैया आज तक, तो सबसे बढ़िया वाली बात कौन-सी है? हाँ, मैंने ये हासिल किया या ये मैंने यू नो इस मुकाम पर आ चुका हूँ मैं, मुझे अच्छा लग रहा है। वो कौन-सा अचीवमेंट है जो आपको एक अच्छा फ़ील दे रही है अंदर से? देखिए मैम, हम जब भी कुछ भी अचीव करते हैं तो हमें ऑब्वियसली अच्छा तो लगता ही है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था, तो उस टाइम पे क्योंकि थॉट दोनों तरफ होते हैं हमारे पास, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों में हम भूलते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि ये क्वालिफ़ाई मैंने एग्ज़ाम दे दिया लेकिन ये नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं हो जाएगा। तो सडनली एक दिन मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आया है। तो रिज़ल्ट आने के बाद मतलब इतनी धड़कन मेरी जो है इतनी तेज़ हुई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? तो मैं रिज़ल्ट देखने के लायक भी नहीं था, इतनी ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट थी। तो एक मेरा फ्रेंड था उस टाइम मेरे साथ, तो उन्होंने जो है वो अ, किसी और को बोल के रिज़ल्ट दिखवाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जेआरएफ क्वालीफाई कर लिया है आपने। लेकिन मुझे फिर भी इस पे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने बाद में खुद पोर्टल खोल के जब देखा, तो मुझे विश्वास हुआ और इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं इसको शेयर नहीं कर सकता, शब्दों में बयान करना उसको मुश्किल। जी, जी, जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम सुग्रीव भैया से भी पूछना चाहेंगे, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन-सी बात है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? क्या हासिल किया आपने जो आप खुद गर्व करते हैं कि हाँ, मैंने ये हासिल किया, यहाँ तक मैंने पहुँचा हूँ? अ, मैम, जहाँ तक गर्व करने की बात है, वो तो हमने अलग-अलग जगह पे परफ़ॉर्म किया है मैम, अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छे-अच्छे लेवल पे हम गए। लेकिन जो चीज़ अच्छी लगी, खुशी जिस चीज़ से मिली, उस टाइम पे मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस भी लगाया था, जब मैं 12th क्लास में था और लोगों ने डिमोटिवेट किया था कि मतलब तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा फैकल्टी में। म्यूज़िक फैकल्टी से मैंने वोकल से ग्रेजुएशन किया है। तो उस टाइम पे मैं सोचता था कि यार काश मेरा एडमिशन फैकल्टी में किसी तरीके से हो जाए। मैंने इंटरव्यू दिया, मतलब वोकल एंट्रेंस दिया, तो मेरा एडमिशन हो गया और किसी ने कहा कि तुम्हारा जो है फर्स्ट कट ऑफ में नाम आ गया है। तो मैंने स्टेटस लगाया था, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। मतलब जब मेरी जॉब लगी, अभी मैं एसएससी में एमटीएस के पोस्ट पे काम करता हूँ मैं। अ, वो भी मेरे फ्रेंड ने बताया था कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली थी, ये बात सच। जी भाई साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम ये पूछना चाहेंगे आप दोनों से, मुकेश भैया पहले बताइए आप, अगर आपके जगह में कोई और है बंदा और उनको सही नहीं दिखाई दे रही है या कंप्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड है, उनका आँखें थोड़ी भी नहीं दिख रही है या पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड है, तो आप किस तरह के संदेशा और हिम्मत देना चाहेंगे उनको? कि बहुत सारे लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं। मैं भी कभी-कभी हिम्मत हार जाती हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आँखें नहीं हैं, तो उन लोग का हिम्मत तो एकदम टूट जाती रहती है हमेशा। तो आप उनके लिए किस तरह के संदेश आप देना चाहेंगे भैया? अ, देखिए, अगर अ, कोई भी पर्सन, वैसे तो आपने विजुअली इम्पेयर्ड और सिर्फ पार्शियली के लिए पूछा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का हैंडीकैप है, तो सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स जो हैं, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा बच्चा इस तरह से है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जैसे मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ या और कोई किसी भी प्रकार का उसका मतलब शरीर में किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि वो किस तरह से उस प्रॉब्लम से उभर के
अपने लिए अपने लिए जो तरक्की की राह है उसको तलाश कर सकता है। और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो तो अपना काम इस तरह से कर सकते हैं, और बच्चों को, जो भी बच्चा होगा उसको मतलब अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, और अपने दिमाग से सबसे पहले ये निकालना चाहिए कि मैं हैंडीकैप हूँ। उसको ये सोचना चाहिए कि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ और मुझे पढ़ना और लिखना है। और फिर धीरे-धीरे जैसे वो बड़ा होगा उसके जो भी शौक डेवलप होंगे, उसको कैसे अचीव करना है वो उसके लिए उसको मेहनत करनी चाहिए। बस यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुग्रीव भैया, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? किस तरह के संदेश आप देना चाहेंगे? मैम मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, बस ये कहूँगा जो मैंने कहा है। जी जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? आप शेयर करना चाहेंगे या बस सहमत है? क्या मैम? आप सहमत है और एग्री होते हैं जो मुकेश भैया ने शेयर किया है? जी मैम, बिल्कुल। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? कंटिन्यू बस हम उसी पे काम करें, और दूसरी कोई चीज़ ना। जैसे मैं म्यूज़िक करता हूँ, मेरे को लोगों ने कहा कि अरे तुम म्यूज़िक मत करो, तुम क्या करोगे, तुम्हें तो म्यूज़िक आता ही है, तुम ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से करो। लोगों ने मुझे डिस्कराइब किया, बट म्यूज़िक जब मैंने म्यूज़िक लिया, म्यूज़िक ऑनर्स किया, तो मुझे पता लगा कि नहीं, आगे बहुत ऑप्शन खुले हैं। अरे तुम रेलवे में नहीं, तुम जो है म्यूज़िक टीचर बन पाओगे, उसके बाद उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब आप जो करना चाहते हैं उस पे आप फोकस कीजिए, वो सफल होगा व्यक्ति जो भी ऐसा करेगा। जी जी, मुकेश भैया, जी। आप हमारे लिए अभी एक गाना गा दीजिए। हम सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए किस तरह के गाना भी आप सुनाना चाहेंगे? ओवर टू यू। वो दिल नवाज है, लेकिन नजर के नाज नहीं। वो दिल नवाज है, लेकिन नजर के नाज नहीं।
जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज रियली वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स रियली वंडरफुल। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ये लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे अंत में। हम सब इस धरती पर ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये सभी जानते हैं। हम एक ना एक दिन हम सभी को जाना है। जब हम इस धरती पर नहीं रहेंगे तो लोग हमें किस तरह से याद करना है? तो मैं ये यही प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी मुकेश भैया।
जब अपनी वक्त आ जाएगी, हम इस धरती पर नहीं रहेंगे, तो लोग हमें कैसे याद करें? तो लोग मुकेश कुमार को कैसे याद करें? किन किन बातों के लिए आपको याद करें और आपकी अच्छी बातें लेकर वो आगे जाए? देखिए मैम, इसके लिए तो खैर मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि मैं अभी अ, इस लेवल पर पहुंचा नहीं हूँ कि मुझे लोग याद करेंगे। लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि अ, मैं म्यूजिक के अंदर, यानी कि जो मैं गाना गाता हूँ उसमें अ, और मेहनत करके अपना नाम इस तरह से रोशन करूँ कि लोगों को लगे कि हमें इनको याद करना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मुझे लोग याद करें तो संगीत के नाम से ही याद करें। जी जी जी, दैट्स रियली वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सुग्रीव भाई, आपसे यही प्रश्न मैं पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? मैम सेम थिंकिंग मेरी भी है कि मुझे अगर लोग याद करें तो ऐसे ही याद करें कि एक ऐसा इंसान था जो म्यूजिक से जुड़ा हुआ था। उसको सिर्फ म्यूजिक करने से मतलब था और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सर, अभी जी। आपके स्टूडेंट्स के लिए आप किस तरह के संदेश देना चाहेंगे? आज यहाँ पर इस मंच पर आप शेयर किया है, अपने जिंदगी के बारे में शेयर किया है, आपने दो गाना हमारे लिए सुनाया है। तो अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो 2019 से लेके अब तक बहुत सारे बैचेस आके गए होंगे, आपके साथ बैठ के सीखे होंगे, आपके साथ मिलजुल कर वक्त बिताए अ, होंगे, तो उनके लिए किस तरह के संदेश आप देना चाहेंगे, या क्या बातें जी। आप सुनाना चाहेंगे आज उनको कि पढ़ाई देखिए। पर और से माँ बाप को सम्मान देना है, मोबाइल कम यूज करना है, एग्जाम में अच्छी मार्क्स लाना है, अगर कोई मुश्किल आए तो निडर होके उसको सामना करना है, और जी, देखिए मेरे पास अभी तक 5वीं तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी कि मैं प्राइमरी टीचर हूँ। तो अ, उन बच्चों को तो मैं सबसे पहले यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने माँ-बाप का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें और जैसे वो आपको कहते हैं, जो अच्छी बातें आपको वो सिखाते हैं, उनको सीखें। और जो कोई भी आपको बुरी बात कहीं भी देखने को मिलती है, उसको इग्नोर करें और मोबाइल का प्रयोग तो कम से कम ही करें और अच्छी चीज़ों के लिए करें। और एज़ अ म्यूज़िक टीचर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट संगीत में है, वो अ, इसको इसका थोड़ा सीख के और रियाज़ करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो डेफ़िनेटली वो आगे बढ़ेंगे। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सुग्रीव भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हैं? मैम रिपीट। कुछ कहना चाहेंगे भैया आप? नहीं मैम, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि छोटे बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट रहना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जिस भी फील्ड में जाए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे ड्राइंग हो, तो उनको पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि मतलब हमारा बच्चा इसमें है, अगर इसका इंटरेस्ट इसमें है तो हम उसी में कुछ मतलब बच्चे को अच्छा गाइड करें या मतलब कुछ भी, जो भी है। मैं मेरा तो यही विचार है। जी जी। मुकेश भैया, अभी एक बड़ी सी बात और उसके बाद में सेशन को खत्म करेंगे आज। जी। थोड़े से माँ बाप ऐसे हैं, जब उनका बच्चा होता है, या कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम है बच्चे का, या कुछ उनका आंख या उसके हाथ पैर सही नहीं है, कुछ ऐसे बच्चों को क्या करते हैं वो लोग, वो जाके उन लोग अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, या उनको अबैंडन कर देते हैं, अपनाते नहीं, या हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत सारे माताएं और मदर्स एंड फादर्स ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, आप किस तरह के संदेश देना चाहेंगे इस पेरेंट, इन तरह, लाइक दिस टाइप ऑफ पेरेंट्स, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम यू? किस तरह की संदेश देखिए। आप देना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स? जी, जी। मैम जैसे कि मैंने पहले भी कहा था इसमें कि सबसे पहले
जो पेरेंट्स हैं उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे बच्चे में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से हमें उसको अस्वीकार नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको हमें कहीं भी छोड़ना नहीं है, या आप उसको हॉस्पिटल में अगर छोड़ के आ जाएंगे ये सोचकर कि आपका बच्चा आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये उनकी सोच जो है सरासर गलत है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उनको, उस बच्चे को अ, बड़े करने के साथ साथ, मतलब उसको पालने के साथ साथ मोटिवेट करना चाहिए कि आपको जीवन में पढ़ाई करनी है, और अ, जो भी उनका गोल है उसको अचीव करना है। तो पेरेंट्स के लिए तो मेरा यही संदेश रहेगा कि उनको बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको कहीं पे छोड़ देना चाहिए, या फिर उसको इग्नोर करना चाहिए कि ये तो ऐसा बच्चा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, या इस तरह की बातें कुछ लोग करते हैं, और वो सरासर गलत हैं। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उस बच्चे को मोरल सपोर्ट देना चाहिए, और उसके साथ-साथ उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप अ, सब कुछ जो बाकी लोग कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप मेहनत करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएँगे। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया और सुग्रीव भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे भी मंच पर आना है और शेयर करनी है, हम लोगों को हिम्मत देना है, और हमारे जो दर्शक है उनको भी हिम्मत देना है, क्योंकि हमेशा लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है, वो आपसे सीखना है, आप दोनों से, और वो आज हमने सीखा है। आप हमेशा मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं आप लोग, और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी के बारे में शेयर किया है। जब गा रहे थे तो अपने दिल से गा रहे थे, जब तबला बजा रहे थे तो सच्चे दिल से आप ये सब कर रहे थे। तो ये सब हम लोग सीखना है, और हिम्मत कभी नहीं हारना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत-बहुत आपने शुक्रिया, बताया। और मैं आपका दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया हमारी बात रखने का, और जैसा भी हम थोड़ा बहुत गाते हैं उसको लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया आप बने। तो इसलिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया, और सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। My dear friends, with this we come to an end to the International Fab Talks for today. Please do share this video with the right kind of people and encourage the songs that have been sung today on this platform. Let's give a wonderful hear to what was being shared today on this International Fab Talks. We love to hear the stories of all the unsung heroes. And today in front of us, we have an unsung hero and his friend Sugreev. That is Mr. Mukesh, Kumar and Sugreev ji. They have shared their journey with us. Let's join together and make this world more beautiful. Let's light the lamp of peace, joy, and hope. And let's avoid, the hatred that we have for people around us. Let's be more inclusive, and let's love and spread more love and joy in the world. We'd love to see smiles on the faces of everyone, including you and me as well. So we can do this by joining hands together and by sharing whatever we have with one another to make it a beautiful world. With this, we'd like to sign off now. And if you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. And above all, don't forget to encourage people around you in the right way, to support them in the right way. And of course, to be a person who could love your own self the way you are created by the Almighty. Take care of yourself, your family, and of course, your friends and the planet as well. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्ते।